starting it out the things. Myself, Bashir Mansoori, Group Chairman SGCCI, leading SGCCI IT, AI, IoT, Digital Marketing and Cyber Security Committees. I welcome our Mr. President, Sri Himanshu Bhai Bodawala, our Vice President, Sri Ramesh Bhai Vagasia, our Secretary, Sri Bhavesh Bhai Taylor, our past President and Federation of Textile Associations VSV Chairman, Sri Bharat Bhai Gandhi. I welcome our distinguished guest, Mr. Amit Saluja, NASSCOM Senior Director and Center Head, Gandhinagar. I welcome Mr. Amit Goel, Director and CEO of IoT Dashboard, Gandhinagar. I also welcome the Group Chairman, Mr. Vijay Bhai Mewawala, and Chairman, Shri Chetan Bhai Sheth. I request our Honorable President to give a welcome address. Sir, please. Good evening, everybody. Keynote speaker of today's program and NASSCOM Center Head, Gandhinagar, and Senior Director, Center of Excellence, Sri Amit Saluja ji, my colleague, Vice President, Sri Ramesh Bhai Vagasia ji, Honorary Secretary, Sri Bhavesh Taylor ji, our past President and FIAC Chairman, SASMA Chairman, also the SARC Chairman, Sri Bharat Bhai Gandhi, Group Chairman Vijay Bhai Mewala, Group Chairman Bashir Mansoori, Chairman MSME Committee Chetan Sheth, and all the dignitaries present. We all are very much lucky today that we have got such an eminent speaker, Mr. Amit Saluja ji, who have vast experience in IoT. So first of all, let's welcome him with a round of applause. Sir, welcome to Chamber. Friends, textile industry is very important for India and our region. It is the second highest employment generating industry after agriculture in India. World over, this industry provides maximum employment. Government of India has made a projection to achieve $100 billion of export of textile, apparels and garments by the year 2030. As we all know that 90% of the production of textile articles in India is controlled by the MSMEs. Therefore, in order to achieve this target of $100 billion of export, it is the textile MSME who has to perform as per the global demand. The technological domains like artificial intelligence, the Internet of Things, that is IoT, big data, blockchain, 5G, 3D printing, robotics, drone, genetic editing, nanotechnology, etc. are now the buzzwords in the business world across the globe. Friends, digital evolution will play a great role in the textile industry for further development. In the near future, the IoT, that is Internet of Things revolution, will totally change how the production machine operate while gathering data on all processes, while cement big data in the decision making of all levels. At the same time, the design within the fashion, manufacturing and within the technical textile sectors moves to a completely digital process, allowing fast simulation of the created products to evaluate their effectiveness before they are produced. मतलब कि आज जो टेक्सटाइल जो ग्रो कर रहा है वो उसमें आने वाले समय में ये जो AI है, IoT है, उसका बहुत बड़ा एक फेज रहेगा कि जिससे टेक्सटाइल का ग्रोथ बढ़ेगा। और उसी विषय को लेके आज हम अमित सलूजा जी को लेके आए हैं। So sir, once again I welcome you to this very informative and fruitful seminar, and I welcome all the dignitaries here. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. President. It's time for floral felicitation. May I request our President Shri Himanshu Bhai and other office bearers for the floral felicitation of the guests. Yes, sir. Once again. Thank you, President. How about that?
Thank you, sir. Friends, for what we are here today, I will request our Honorary Secretary, Shri Bhavesh Bhai Taylor, to brief us about today's program. Sir, please. Thank you, Bashir Bhai. President Himanshu Bhai Pudawala, Vice President Ramesh Bhai, our Vice President Shri Bharat Bhai, today's keynote speaker, Senior Director and Center Head of NASSCOM, Mr. Amit Saluja ji, our both the Group Chairman Bashir Bhai and Vijay Bhai and Chairman Chetan Bhai Seth, and all participants over here. Gujarat is the leading state in textile industries and MSME. Adoption of the technology called as Industry 4.0 has become essential for business organizations world over to achieve excellence and remain competitive. As textile industry is one of the largest industry in Gujarat and especially in Surat, which has a huge export potential, it is impressive for textile stakeholder to understand the importance of new age technology and impact of automation in their business to leverage their competitive advantage. NASSCOM Center of Excellence has been established with the support from Ministry of Electronics and Information Technology and the state government to accelerate the adoption of digital technologies in the manufacturing sectors of India. In order to pursue objectives of the technology of South Gujarat textile industry, SGCCI and NASSCOM Center of Excellence has organized today's workshop on making textile MSME globally competitive. As described by our President, India is poised to achieve $100 billion exports by 2030. Surat being the MMF hub of India as well as the MSME hub of Gujarat, today's program will surely going to be the first step in this direction. We have with us the Senior Director and Center Head of the NASSCOM Center of Excellency from Gandhinagar, Mr. Amit Saluja ji, who will give us guidance about the subject thoroughly. Thank you very much. Thank you, Bhavesh Bhai. Friends, before we hear our distinguished guest, I'd like our Group Chairman Shri Vijay Bhai Mewawala to introduce our speaker Shri Amit Bhai Saluja. Mr. Amit Saluja is a Senior Director and Head of the NASSCOM Center at Gandhinagar. In addition to NASSCOM, Amit has held a leadership position at IBM, General Electric and RPG Transmission in a career spanning over 25 years. Having worked with the industrial and technology companies in a multiple domains, Amit has gained a rich and diverse experience in using the digital technology such as AI, cloud, analytics and IoT in a greater efficiency in the manufacturers and driving the business growth. He is a firm believer in making the optimum use of the technology for the transforming internal business process. Amit is also certified Lean Six Sigma Black Belt and expert in devising design thinking the methodology for the building technology roadmap. He is also the certified Smart Industries Readiness Index assessor and trained to evaluate the companies on the digital maturity and advice for manufacturing transformation journey. Amit also mentors the MSMEs and the startup on a business strategy, process improvement and the building technology roadmap. Welcome, Mr. Amit. Thank you. Friends, it's time to hear from our distinguished guest. So I give the floor to Mr. Amit Saluja. Sir, please. Thank you to the SGCI for hosting this wonderful seminar. Thank you, Himanshu Bhai, for your support. And then we decided a month back or 2 months back, and then finally it's good to see that we are meeting here with all of you. Thank you, Ramesh Bhai. We had a great discussions earlier, and then I think I'll thank everyone, Bhavesh ji, Vijay Bhai, Bharat Bhai for making this happen, Bashir Bhai, and special thank to Chetan Bhai for being with us whole day today.
So he helped us basically to understand in detail the processes also for the textile industry. So I think whatever we will speak today, it will be more relevant. So thank you Chetan bhai for giving us your day. I think मैं हिंदी में बोलता हूँ. मेरी गुजराती अभी भी मैं सीख रहा हूँ. 3 साल हुए गुजरात में आए हुए, तो कुछ समझ आने लग गई है, लेकिन अभी बोलने में उतना वो हो नहीं पाता है. तो ट्राई करूंगा जितना हो सके, लेकिन हिंदी में तो आई थिंक आई स्पीक होपफुली आई थिंक हिंदी सबके लिए ठीक रहेगी. तो मैं जो बेसिकली अभी 40 से 45 मिनट में आपके लूंगा, और जो मैं बोलूंगा बेसिकली वो कैसे हम टेक्नोलॉजी, पहले तो यूज क्या है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी होती क्या है. आई थिंक एमएसएमई के लिए थोड़ा सा एक वो भी एक क्लैरिटी नहीं है कि टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन होता क्या है, क्योंकि काफी जगह ये देखा है कि जब कंपनीज में हम गए तो काफी जगह यही सुना कि हमारा जो प्लांट है देखिए पूरा डिजिटाइज है, लेकिन जब आप देखेंगे तो एट द एंड होता क्या है कि वो डिजिटाइज नहीं है, वो ऑटोमाइज. सो कंपनीज के अंदर हर कंपनी में आई थिंक आपके सब टेक्सटाइल यूनिट में सब मशीनरी से काम हो रहा है. जो लेबर होती है वो मैनुअल ड्रिवन वर्क अभी काफी कम हो गया है. लेबर पूरा काम मशीन से कर रही है, सारा काम मशीन कर रही है. तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा पूरा एक तरह का वर्कर के बिना मतलब हम काम कर रहे हैं, वर्कर सिर्फ मशीन से ऑपरेट कर रहे हैं. लेकिन अब ये जो हुआ है ये अच्छा हुआ है. आई थिंक इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो एक प्रोडक्टिविटी आई है, जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट आई है, एफिशिएंसी आई है, काफी ज्यादा हो गई है. लेकिन अभी भी ये एक लेवल तक पहुंचा है. अभी भी हम वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन अभी भी नहीं बने. हार्डवेयर और मशीन्स हमारे पास आ गए हैं, लेकिन हमारे अगर हम इस हार्डवेयर के साथ अगर हम सॉफ्टवेयर को मिला दें तो 1+1 11 बन जाए. तो उससे जो प्लांट के अंदर जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, जो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट आएगी, वो एक दूसरे लेवल पर ले जाएगी. तो उसी के बारे में बेसिकली मैं थोड़ा बताऊंगा, और फिर उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो देन वी विल गो थ्रू. अब बेसिकली हमने करा कि ये जो हमारा जैसे बोला कि सेंटर जो बना था, ये सेंटर एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर एक सेंटर बना है. तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेंटर से और गुजरात में गुजरात गवर्नमेंट, दोनों सेंटर और स्टेट की पार्टनरशिप नेशनल के साथ हुई, और उसकी वजह से ये सेंटर बना गांधीनगर. सेंटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो इतना हम कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया करना है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, वो कैसे होगी, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए. तो जो सेंटर का जो ऑब्जेक्टिव है कि कंट्री के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी को लेके जाया जाए, एक अवेयरनेस क्रिएट करी जाए कि ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो समझ पाए कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, और मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प और सपोर्ट भी करें ये टेक्नोलॉजी लेने के लिए. तो इस पर्पज से ये सेंटर बना है. अब जब हमने काम शुरू करा, पहले हमने बड़ी बड़ी कंपनी के साथ इनोवेशन उनको हेल्प करी. करीब 1.5 साल तक, 3 साल हो गए ये सेंटर बने हुए. करीब 1.5 साल तक पूरा फोकस था कि पूरी एक इंडस्ट्री को हर सेक्टर लेवल पर बड़ी कंपनियों को हेल्प करी जाए. तो वो जब एक रूटीन पे हो रही थी, तो उसके बाद फिर हमने जो नेक्स्ट फोकस करा वो एसएमई सेक्टर पे. और सबसे पहला स्टेप हमने ये करा कि गुजरात की ही करीब 50 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे हमने विजिट करा. और वो विजिट इसलिए करा क्योंकि हम देखना चाहते थे कि समझ लें कि अभी जो इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन लेवल कहां तक पहुंची है, उस पर्पज से, और कंपनी में क्या चैलेंजेस हैं एमएसएमईज में, कौन सी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा समझने के लिए करा. तो अब आप जो स्लाइड बेसिकली देख रहे हैं, तो ये एक उस बेसिकली हमारी विजिट्स का जो हमारा समरी जो है वो है. बेसिकली सबसे बड़ी बात जो हमने देखी कि जो लार्ज कंपनी, बड़ी जो कंपनियां हैं और एसएमई जो कंपनियां हैं, उनके अंदर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में एक बहुत बड़ा गैप है. जितनी भी लार्ज कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो 8-10 साल से तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में लगे हुए हैं. और कोविड के बाद से
पिछले 2 साल में जो कंपनियां हैं उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट डबल कर दी है। यानी कि जिस स्पीड से वो टेक्नोलॉजी ले रहे थे, और जब मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, मैं हमेशा सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं जो कि हार्डवेयर के साथ यूज कर सके। तो पिछले 2 साल में जो उन्होंने जो रूटीन इन्वेस्टमेंट कर रहे थे बड़ी कंपनियां, उन्होंने उसको डबल कर दिया। लेकिन अब उसी स्टेज पर अगर एसएमई में देखें तो पहले भी उतना नहीं हो रहा था, और अभी भी आप देखेंगे, आप खुद भी देखिए कि आपके अपने प्लांट में पिछले 2 साल में सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई। वो सॉफ्टवेयर जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, वो आप देखेंगे कि अभी भी वो एक नहीं हो पाया। और उसका रीजन क्या है? अवेयरनेस लेवल नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं, अगर वो है भी तो कौन आके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अब एमएसएमई के पास चैलेंज रहते हैं कि वो कंसल्टेंट्स भी हायर नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट जाती है। टेक्नोलॉजी कंपनीज के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि फिर उनके कॉस्ट लेवल बहुत बड़े हो जाते हैं। स्टार्टअप्स हैं जो ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कौन सा स्टार्टअप कहां पर है, उसके क्या स्किल्स हैं, वो है तो वो भी आपको पता नहीं रहता। उसके बाद फिर बजट्स के रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस अलग हैं। तो करेक्ट, ये सब अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो ये 2-3-4 चीजें हैं जो कि आपको रोक रही हैं टेक्नोलॉजी को लेने। और उसके अलावा जो समरी बेसिकली अगर मैं बोलूं तो देयर इज लॉट ऑफ, मतलब फोकस हमेशा रहता है कि हम कौन सी मशीन ले आए ताकि जो अभी ह्यूमन का काम मशीन करने लगे। तो ऑटोमेशन पे फोकस हमेशा रहता है। और अगर कहीं कहीं कुछ डिजिटाइजेशन, अगर कहीं कहीं कुछ हुआ भी है, पहले तो बहुत कम लेवल पर हुआ है, लेकिन जहां पे भी हुआ भी है तो वो बेसिकली छोटे छोटे लेवल पर 1-2 चीजें कर ली। अगर मैं ईआरपी भी बोलूं तो आई थिंक ईआरपी जो एक बेसिक्स है हर एक कंपनी के लिए, अभी भी करीब 30 से 40, अगर मैं सिर्फ एमएसएमई सेक्टर की बात करूं तो 30 से 40% कंपनीज में ही अभी भी ईआरपी आया है। बाकी जगह अभी भी ईआरपी नहीं है। अब मैं ये क्रॉस इंडस्ट्री बोल रहा हूं, मैं सिर्फ अभी ये टेक्सटाइल के स्पेसिफिक नहीं बोल रहा। क्रॉस इंडस्ट्री अगर हम देखें एसएमई के पास 30 से 40% कंपनी में ही ईआरपी है, उसके अलावा ईआरपी भी नहीं है। और जो मैं आईओटी और एआई जो ये सॉल्यूशंस हैं, ये तो अभी बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अब क्वेश्चंस मैंने मतलब क्यों नहीं कर पाते, आई थिंक वो मैंने आपको बताया कि ये जो मल्टीपल रीजंस हैं वो इसीलिए बेसिकली आप नहीं कर पाते। तो उसी का बेसिकली थोड़ा सा एक अवेयरनेस लेवल हम आज करेंगे। अब जो हमने जो विजिट्स करे, उससे जो हमने प्लांट्स में जब मैन्युफैक्चरर लीडर से मिले, बिजनेस ओनर से मिले, तो उनसे पूछा कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो ये उनका एक समरी है चैलेंजेस के लिए। और अभी आप देखेंगे कि ये जितने भी चैलेंजेस हैं, वैसे ये बोल रहा हूँ, ये क्रॉस इंडस्ट्री चैलेंजेस हैं, ये टेक्सटाइल स्पेसिफिक चैलेंजेस नहीं है, लेकिन सारे के सारे चैलेंजेस आपको रेलेवेंट दिखेंगे क्योंकि ऐसे चैलेंजेस हैं कि जो कि हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है लेबर का। लेबर का इश्यूज हमेशा रह रहा है, कभी आते हैं फिर चेंजेस हो जाते हैं, कितने वर्कर्स हैं। अभी आपको ये भी नहीं पता कि अगर प्रोडक्टिविटी लेवल अगर आप निकालने चाहें वर्कर्स की, तो वो प्रोडक्टिविटी किस प्रोडक्टिविटी लेवल पर काम कर रहे हैं, कि प्रोडक्टिविटी लेवल इंप्रूव हो सकती है, नहीं हो सकती, क्लैरिटी नहीं रहती। ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है, एनर्जी जो पावर कंजम्पशन है, वाटर कंजम्पशन है, ये बढ़ रहा है। अगर आप एक मतलब ऐसे तो मुझे पता नहीं कितनी आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप एक सिंपल सा एनालिसिस करिए कि एनर्जी कॉस्ट पिछले 2 साल की पर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्शन, आप देखेंगे कि वो जो आपका प्लांट है, वो जो ये जो एनर्जी कॉस्ट है, ये बढ़ रही होगी पर यूनिट प्रोडक्शन भी। मतलब अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हुई, तो वो तो अननेचुरल नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्शन उतनी है फिर भी एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं तो कुछ इशू है। तो एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्लैरिटी होती नहीं है कि हर मशीन डिटेल लेवल पर किस एफिशिएंसी लेवल पर इस समय काम कर रही है, और अगर उसमें कुछ एफिशिएंसी अगर उसकी लो है तो उसके क्या रीजंस हैं। पिछले अगर आपसे मैं पूछूं, अगर पिछले 1 साल में एफिशिएंसी लेवल कैसी रही आपकी मशीन्स की, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आई, कब आई और वो क्यों आई। करेक्ट। सो ये रीजंस, क्लैरिटी, एक कॉन्फिडेंस से कोई भी नहीं बोल पाया। ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन होते हैं, ऐसा कोई अभी वैसे
एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के नाम पर एक होता रहता है, वो कुछ हद तक एक ब्रेकडाउन को कम करता है, लेकिन फिर भी अभी ब्रेकडाउन हो रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये जो ब्रेकडाउन और कम हो जाए? रिकॉर्ड्स अभी जितने भी, अगर कोई रिकॉर्ड कीपिंग होता है, चाहे वो क्वालिटी कर रहेगा या कोई वर्कर अगर कोई भी रिकॉर्ड अगर करना है, तो सारे रिकॉर्ड्स अभी रजिस्टर्स में रहते हैं। रजिस्टर में रिकॉर्ड बनते हैं, रजिस्टर भर जाता है, अलमारी में चला जाता है, अलमारी लॉक हो जाती है। उसके बाद उस डेटा का वो जो मतलब एक सोना है कि एक जो डेटा है आपका, वो सारा एक रिकॉर्ड अंदर बन के रह जाता है। हम उस डेटा को अगर हम उस डेटा को यूज कर पाए, उसको एनालाइज कर पाए और उससे अगर हम डिसीजंस लें, तो आई थिंक आप काफी कुछ अपने आप ही आपको कुछ आंसर्स मिलने लग जाएंगे कि आप प्लांट लेवल पर क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो जाए। तो ये डेटा बेसिकली आपको रजिस्टर में नहीं चाहिए, ये आपको कंप्यूटर में चाहिए, ग्राफ में चाहिए, ताकि आप लिखें और आपको पता लगे कि कहां पर कब क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों प्रॉब्लम हुई, रूट कॉज उसका निकाल सके ताकि उस पर एक्शन ले सके। ये तो अब जब देखिए ये सारे के सारे चैलेंजेस आपके यहाँ पर भी रहेंगे। अब जब हमने चैलेंजेस सुने, उसके बाद ओनर से पूछा कि तो फिर आप टेक्नोलॉजी देते क्यों नहीं, राइट? तो उसका ये आंसर्स है कि जो ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लेते। सबसे पहला जो आंसर बोलता है कि ये जो हम सारे लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले लोग हैं, हमें डिजिटल समझ में इतना नहीं आता, राइट? तो इसलिए हम नहीं लेते। उसके बाद है कि अभी हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास अभी वैसे ही लिमिटेड मैन पावर है, तो हमारे पास टाइम और पैसे नहीं है अभी लगाने के लिए, तो अभी जैसा चल रहा है वो चलने देते। फिर सुना कि IoT, AI, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, एक सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है, ये हमारे पास इसका मतलब नहीं है, करेक्ट? ये जितने सारे के सारे बेसिकली इट इज बेसिकली मिथ्स। कुछ लोगों ने कहा है कि अभी आप देखिए मेरा प्लांट तो सब सही चल रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं क्यों चेंज करूं? और एक बड़ा आता है कि अब जैसे कि मैंने आज तक किसी SMEs को देखा नहीं है टेक्नोलॉजी यूज करते और बेनिफिट लेते हुए, तो जब तक कोई यूज करेगा नहीं तब तक बेनिफिट कैसे आएगा? तो सब एक दूसरे को अगर यही बोलेंगे तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा जो कि यूज करे और फिर बाकी लोगों को एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन दे। और लास्ट वाला जो मैंने आंसर आपको बता ही दिया था कि यही बोलते हैं कि हमने इन्वेस्ट कर चुके हैं हम डिजिटाइजेशन में, लेकिन होता क्या है कि वो सारे ऑटोमेशन, वो सारी मशीन्स। तो अब एक जो है नेक्स्ट स्लाइड, बेसिकली इसमें एक क्लैरिटी बेसिकली कि डिफरेंस होता क्या है ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन। सो आई थिंक ये चीज समझनी है, बहुत जरूरी है। ऑटोमेशन होता है कि जो काम ह्यूमन कर रहा है उसको एज इट इज बेसिकली आप मशीन से करवाने लग जाए, दैट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोसेस का एक स्टेप जो होगा वो मशीन करने लग जाए। जबकि डिजिटलाइजेशन जब हम कहते हैं तो उसमें होता है कि जो मशीन्स हैं वो आपस में बात कर सकें, मशीन ह्यूमन से बात कर सकें और मशीन आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। दैट इज बेसिकली इज द क्रक्स ऑफ डिजिटलाइजेशन। और वो होता कैसे है कि बेसिकली इट इज और जो लैंग्वेज होती है वो बात करने की वो होती है डेटा। तो मशीन एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करेगी, ह्यूमन को डेटा ट्रांसफर करेगी, जिससे कि हम बेटर डिसीजन बेसिकली ले पाए। सो दैट्स बेसिकली द बिगेस्ट डिफरेंस ऑफ ऑटोमेशन एंड द डिजिटलाइजेशन। जब डिजिटलाइजेशन होता है तो वो पूरे एक इंडस्ट्री, एक पूरे कंपनी लेवल पर बेसिकली एक प्लान आउट होता है। ऑटोमेशन एक स्पेसिफिक प्रोसेस लेवल पर बेसिकली होता है। तो आई थिंक ये मोटा मोटा एक डिफरेंस है डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन में। तो आई थिंक ये दिस शुड हैव बीन क्लियर। नाउ वी विल गेट इनटू कि अब स्पेसिफिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस किस तरह के सॉल्यूशंस बेसिकली जो डिजिटल सॉल्यूशंस, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा कि वो सॉल्यूशन किस किस तरह के होते हैं। अब ये हमने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक प्रोसेस, एक वेरी हाई लेवल पर प्रोसेस मैप बनाया है, मतलब यू ऑल आर एक्सपर्ट्स इन दैट। सो बट दिस इज जस्ट टू काइंड ऑफ से दैट इन एवरी प्रोसेस ऑफ इट दीज टेक्नोलॉजीज एंड ये जो सॉल्यूशंस हैं ये यूज हो सकते हैं। अब वो जो सॉल्यूशंस किस तरह के रहते हैं, वो बेसिकली वो एंड टू एंड रहते हैं, स्टार्टिंग विद द सप्लाई चेन, बेसिकली डिमांड एस्टिमेशन की अभी जो डिमांड है वो डिमांड आगे कैसे रहेगी, वो डिमांड एस्टिमेशन के भी सॉफ्टवेयर आते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्शन प्लानिंग है, प्रोडक्शन प्लानिंग का बेसिकली यू कैन डू कि अब बेस्ड ऑन द डिमांड अभी आपका वीकली, डेली और मंथली प्रोडक्शन प्लान कैसा रहना चाहिए
और वो जो बनता है वो बेसिकली बेस्ड ऑन द कंस्ट्रेंट्स जो हैं अभी प्लांट के अंदर, वर्कर्स के अंदर जो भी, या वर्कर का स्किल लेवल, हर एक को लेके बेसिकली एक प्रोडक्शन प्लान बनता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली जिसमें आपको पता लग सके कि इन्वेंट्री अभी कितनी है, कितने दिन की इन्वेंट्री बची है। ऑटोमेटिक अलर्ट्स की, जब एक इन्वेंट्री एक लेवल से कम आ जाएगी तो फिर वो ऑटोमेटिक अलर्ट आएगा ताकि आप टाइमली बेसिकली ऑर्डर कर सकें। सो एक पूरा एक इन्वेंट्री का पूरा ट्रैकिंग के लिए रहे। नेक्स्ट स्टेप पर अब आगे जाएं तो उसके बाद होता है बेसिकली विजिबिलिटी, शॉप फ्लोर डिजिटलाइजेशन। उसमें बेसिकली हर मशीन लेवल की एफिशिएंसी, वो कितना प्रोडक्शन कर रही है, किस एफिशिएंसी पे काम कर रही है और किस लेवल की वो क्वालिटी प्रोड्यूस कर रही है। बेसिकली उसमें डिफेक्ट्स, कितने डिफेक्ट्स जो आउटपुट उसका आ रहा है उसमें से कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं, किस आप देखेंगे जब आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे, अगर आप डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे ना तो आपको आएगा कि कुछ मशीन की जो क्वालिटी प्रोडक्शन है वो बेटर होता है, कुछ बाकी दूसरी मशीन। तो उनमें डिफरेंस तो कहीं ना कहीं होगा। तो इसका मतलब अगर आप एक एनालिसिस करें कि कौन सी मशीन बेटर क्वालिटी का प्रोड्यूस कर रही है सेम वर्कर से और कौन सी मशीन कम का है, तो इसका मतलब उस मशीन में तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर वो फिक्स करी जा सके तो उससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो एक बेसिकली एक विजिबिलिटी एक प्लांट लेवल पर पूरी, जहां पे आपको एक सिंगल डैशबोर्ड में मिल जाए हर मशीन की एफिशिएंसी और पूरे प्लांट की एफिशिएंसी, और जहां पे भी प्रॉब्लम हुई है वो कब प्रॉब्लम हुई, उसका क्या रीजन था, कितने टाइम तक ब्रेकडाउन रहा, कितने टाइम वो अप टाइम हुआ और वो क्यों ब्रेकडाउन हुआ, क्वालिटी किस लेवल की निकल रही है। तो ये सारे अगर आपको डैशबोर्ड अगर आपको सामने स्क्रीन पर मिलेंगे तो आप खुद ही, अगर आप 1 घंटा उसके सामने बैठेंगे तो आपको खुद ही आपको आइडिया आने लग जाएंगे कि अब क्या कर सकते हैं हम प्लांट के अंदर। किसी को आगे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही वो सोल्यूशन बेसिकली आपको पता लगेगी। उसके बाद रहता है सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, अगर मैं बोलूं तो क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी। अभी मशीन्स प्रोड्यूस तो कर रही हैं, लेकिन एक जो वर्कर है वो विजुअल इंस्पेक्शन बेसिकली अभी भी हर एक स्टेप पर रहेगा। जैसे अभी कोन बना तो कोन का एक विजुअल इंस्पेक्शन रह रहा है, अगर फैब्रिक बना तो फैब्रिक का भी एक विजुअल इंस्पेक्शन एक रह रहा है। तो उसमें देयर इज अ वर्कर, वो एक दिन में अगर आप देखें कोन, तो आज भी ये देखा तो एक दिन में एक वर्कर 2000 कोन इंस्पेक्ट कर रहा है। अब आप वर्कर का भी देखिए कि उसकी भी एक कैपेसिटी होगी। अगर कोई इंसान एक ही काम कंटिन्यूअसली करे जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक फटीग लेवल तो उसमें, और एक डिसइंटरेस्ट लेवल, फटीग लेवल आएगा ही आएगा। केसेस आएंगे ही आएंगे कि वो कुछ कभी कभी बीच बीच में थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, तो उसमें इफेक्टिवनेस जो उसकी रहेगी वो कांस्टेंट तो नहीं रह सकती सुबह से शाम तक। सुबह आएगा एनर्जी लेवल हाई होगा, दोपहर बाद आएगा खाना खाएगा, थोड़ी सी नींद आएगी, थोड़ा जल्दी जल्दी करेगा, शाम को घर जाना है, घर में और प्रॉब्लम दिख रही है वो है, तो दिमाग में और भी चीजें आएंगी। तो एक कंसिस्टेंसी ऑफ इंस्पेक्शन तो नहीं रह सकती, और वो भी सालों तक, कभी हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे। और उसके बाद एक विजुअल आई की जो हमारी जो एक कैपेबिलिटी है किस लेवल का देखने की, वो भी एक लिमिटेड रहती है। तो एक सिंपल सा सोल्यूशन रहता है बेसिकली हाई रेजोल्यूशन एक कैमरा लग जाए, जो कि या कोन के ऊपर या वही फैब्रिक के ऊपर जहां पर इंस्पेक्शन हो रही है वहां पर कैमरा लग जाए। वो कंटिन्यूअसली पिक्चर्स लेता रहेगा, और उसके बाद उसके पास एक डेटाबेस रहेगा एक डिफेक्टेड इमेजेस का। उसको वो एक एआई सिस्टम रहता है बेसिकली, वो उसको जो पिक्चर्स आएंगी उसको उससे कंपेयर करेगा, कंपेयर करके देखेगा। अगर वो सब कुछ ठीक है तो वो ग्रीन सिग्नल, कहीं भी अगर डिफेक्ट आया तो रेड सिग्नल, वो बता देगा कि यहाँ पर डिफेक्ट है। और वो जिस लेवल के वो डिफेक्ट पकड़ेगा बेसिकली सिस्टम, वो ह्यूमन से कहीं बेटर होगा, उसकी जो एक्यूरेसी लेवल होगा वो बेटर होगा। तो उसमें आप देखिए, अगर आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन प्रोसेस अगर इंप्रूव हो जाए तो किस लेवल का आपका जो एक तो मटेरियल वेस्टेज बेसिकली आपका कम हो जाएगा, कस्टमर कंप्लेंट्स अगर रहेंगी तो वो कम हो जाएगा, आपकी जो उससे फिर इंटरनल बेसिकली जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली कम होगा। तो और ये देखिए मतलब, और ये ऐसा नहीं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट सॉल्यूशन है, डिप्लॉय करने में बहुत मेहनत लगने वाली है या कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। छोटा सा प्रोजेक्ट है, करीब ज्यादा से ज्यादा 3 महीने एल्गोरिथम अगर बनाना है, सब कुछ भी करना है तो 3 महीने के अंदर सब कुछ करके डिप्लॉय हो जाए। और
ऐसा भी नहीं कि इसमें बाकी पूरे प्लांट के कोई प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो जैसा है वैसा ही है, बस एक कैमरा लग गया ऊपर और कुछ नहीं हुआ। सो सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर और दूसरा बोलो कि वर्कर प्रोडक्टिविटी का, अगर जहां पे मैनुअल ऑपरेशंस ज्यादा हो जाते हैं, वहां पर जैसे स्यूइंग में हो गया या इवन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी कुछ ऑपरेशंस होंगे जो वर्कर कर रहे होंगे, उसमें वर्कर की प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए क्या है, एक सीसीटीवी कैमरा रख गया, वो कैमरा बेसिकली देख रहा है वर्कर को, उसके जो एक्शन है, हाथ की जो मूवमेंट है वगैरह वो एनालाइज कर रहा है, और उसके बेस से बेसिकली वो बताएगा कि ये जो वर्कर है किस लेवल के प्रोडक्टिविटी पे अभी काम कर रहा है। तो आप समझ लीजिए, एक कोई उसमें देख नहीं रहा किसी को, आप भी नहीं देख रहे, एक कैमरा लगा दिया, वो कैमरा वीडियो ले रहा है, और उसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर भी है जो कि एनालाइज भी कर रहा है उसके एक्शंस को वर्कर की, और जहां पे भी लगेगा कि इसके वर्कर के एक्शंस में बेसिकली बेटर होना चाहिए, वो सारे सिग्नल्स आपको बेसिकली मिलेंगे। तो उससे आप वर्कर की प्रोडक्टिविटी बेसिकली एनालाइज कर सकते हैं और वो इंप्रूव कर सकते हैं। तो जहां पे भी मैनुअल ड्रिवन ऑपरेशंस है, वहां पे ये बेसिकली सिंपल सा वो चीज लग सकती है। दूसरे सॉल्यूशन रहते हैं कि बेसिकली एआई और एनालिटिक्स बेस्ड सॉल्यूशंस। जैसे मैंने उसमें देख रहा था, ये डाइंग प्रोसेसिंग के अंदर कहीं भी रेसिपी बन रही है, रेसिपी के अंदर एक आपका एक लेवल का मिक्सचर आपको होना चाहिए, तो उसमें भी एआई का बेसिकली जो सॉफ्टवेयर आपको बता सकता है कि मतलब उसमें हेल्प करेगा कि ये वाले आपका इतने कंपोनेंट उसमें इतना लो केमिकल का कि जो कि एक बेस्ट रेसिपी विल गिवन टू गिव द बेस्ट ऑफ द आउटपुट। सो दैट्स द अदर वे विच इज पॉसिबल। और एग्जांपल अगर मैं दूं तो एनर्जी कॉस्ट का मैंने आपको पहले बताया था कि एनर्जी कॉस्ट हर जगह बढ़ रही, तो एक सेंसर, सिंपल सेंसर लगा दिए जाए जो कि मशीन के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को 24/7 मॉनिटर करेंगे, और उसमें से जो डैशबोर्ड आएगा उसमें बेसिकली देन यू विल सी द ट्रेंड्स, जहां पे उसके अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में वाइब्रेशंस जो होंगी वो ज्यादा होंगी और वो उसमें आने लग जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर वो प्रॉब्लम उस समय फिक्स कर दी जाए तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगी। सो वो एक वे है एनर्जी कंजम्पशन को एक कम करने का। सो आई थिंक ये जितने भी मैंने सॉल्यूशन बताए सब सिंपल सॉल्यूशंस हैं, आपको पूरे प्लांट को डिस्टर्ब करने का कहीं भी कोई भी जरूरत नहीं है। एक एक सॉल्यूशन लेके भी चलेंगे तो आई थिंक कुछ लेवल तक आपकी प्रोडक्टिविटी एक बढ़ जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सब हो जाएगा तो यू आर डेफिनेटली एट ए लेवल ऑफ ए लार्ज कंपनी, उसके लिए जाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 साल से बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उनकी अपनी टीम से, तो वो एक बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन एटलीस्ट आप उस लेवल पर तो पहुंच जाएंगे कि आपके जो कॉस्टिंग है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो एक कम हो जाए और क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। तो अब कुछ एग्जांपल्स बेसिकली वी विल शेयर इट विद यू, और जितने भी अब आप एग्जांपल्स बेसिकली ये देखेंगे, ये सारे एग्जांपल्स स्टार्टअप्स ने इंप्लीमेंट करे हुए हैं टेक्सटाइल यूनिट्स में। सो टेक्सटाइल के स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, इंप्लीमेंट करने वाले भी स्टार्टअप्स हैं, ये कोई बड़ी कंपनियां नहीं है जिन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनी से इंप्लीमेंट करी हुई है। तो आप सिंपल देखिए कि ये कोन की इंस्पेक्शन का बेसिकली एक जो डिप्लॉय हुआ था स्टार्टअप ने करा था, जो मैं कह रहा था कि कैमरा बेस्ड ज्यादातर सॉल्यूशन अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं बेसिकली एग्जांपल्स वो इसी के हैं, कैमरा बेस्ड इंस्पेक्शन का। इसमें एक कोन का है, तो आप देखिए कि जो दो एग्जांपल्स आपको दिखेंगे, गुड कोन एंड बैड कोन। सो ऑटोमेटिकली कैमरे ने फोटो ली, सिस्टम ने कैटेगराइज करा, ये बैड कोन, वो रिजेक्टेड हो गया, राइट। सो इंप्लीमेंट करा था, 10,000 कोन्स इंस्पेक्ट हो रहे हैं इसके अंदर पर डे। नेक्स्ट आप चाहेंगे तो नेक्स्ट बेसिकली ये है, ये एक बड़ी टेक्सटाइल यूनिट है वैसे तो, टॉवल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दे मेक 6 लाख पीसेस एवरी डे। अब उनके अंदर उनको इश्यू एक हो रहा था कि जो उसकी काउंटिंग करने का, एक तो कितने बन रहे हैं और उसके अंदर डिफेक्ट जो बनने के बाद टॉवल में डिफेक्ट्स हैं कि नहीं। तो ये जो है बेसिकली उन्होंने फिर वही सेम कंप्यूटर विजन का जो एक सोल्यूशन लगाया, तो उससे फिर जो देखिए कितनी उनकी बेसिकली प्रोडक्टिविटी जो इंप्रूवमेंट उनको आ गई। और साथ में एक और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो कैमरा जो करता है बेसिकली वो ग्रेडिंग भी कर सकता है। तो जब आपका जैसे वो कोन का इंस्पेक्शन कर रहा है तो उसमें ये भी आपको बता देगा कि अभी ये जो किस
कितने लेवल के इसमें डिफेक्ट हैं, तो आपके अगर जो भी ग्रेड भी होंगे ABC का, अगर जो भी ग्रेड होगा वो भी वो करके देगा। तो इस सॉल्यूशन से आप देखिए कितनी बार होता है कि जब हम मैनुअली ग्रेडिंग करते हैं तो आप उसको बेनिफिट ऑफ वो देख के नहीं, हम खराब प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं देना तो उसको एक लोअर ग्रेड में डाल। तो अब इनकी जो A ग्रेड के जो जितने भी थे वो 1% बढ़ गए। करेक्ट। तो अगर आप इसी का ही अगर सिर्फ आप ROI निकाल लीजिएंगे तो यही कितने, मतलब इट विल मल्टीपल टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट दिस कंपनी हैज डन। फिर आप और देखिए बेसिकली इसके बाद ये अपैरल मैन्युफैक्चर जो मैं आपको बोल रहा था वो प्रोडक्टिविटी वाला सॉल्यूशन, जिसमें कैमरा लगा दिया और वो कैमरा वर्कर्स के मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है और उससे बेसिकली आप एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पैटर्न में वो वर्कर बेसिकली काम कर रहा है और उसको एनालाइज करके फिर आप ये भी उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो पैटर्न में कुछ चेंजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। करेक्ट। वो चेंजेस आप करवा सकते हैं। तो इस कंपनी ने बेसिकली जब करवाए थे तो they received almost a worker productivity increase by 10% just by this, through this solution. Next is basically again a computer vision solution जिसमें वो फाइबर प्रोडक्शन जो उसमें कर रहे थे उसमें जो स्मॉल साइज की इम्प्योरिटीज रहती थी उनको बेसिकली वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे मैनुअली, तो उसके लिए वो एक कैमरा लगाया और उनके जो डिटेक्शन है वो इम्प्रूव हो गई। जो लास्ट सॉल्यूशन इसमें दिख रहा है जो राइट साइड पर, वो बेसिकली एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशन है जो कि कंपनी ने स्टार्टिंग विद 5 मशीन में लगाया, अभी वो बाकी में कर रहे हैं। उसका यही था कि पहले 5 मशीन में लगा के इम्पैक्ट देखें कितनी है, कैसे एनर्जी सेविंग हो रही है, और जब एनर्जी सेविंग दिखने लगे उसके बाद बेसिकली बाकी सारी मशीनों पर लगवा रहे। और जो सोल्यूशन बेसिकली जो मैं पहले बोल रहा था कि एक मेजरिंग दी एफिशिएंसी ऑफ द मशीन एंड द प्लांट, तो वो सोल्यूशन अभी आपको बेसिकली एक स्टार्टअप हमारे साथ है, वो एक लाइव भी बेसिकली वो दिखाएंगे अभी वो कि वो सोल्यूशन कैसे होता है। सो इसलिए उस केस स्टडी में अभी नहीं जा रहा, बट बिकॉज ही विल कवर इन डिटेल दैट सोल्यूशन। सो आई होप मैन दिस वुड हैव गिवन यू सम आइडिया कि वो सोल्यूशंस कैसे रहते हैं और किस तरह के वो हेल्प करते हैं। और जितने भी सोल्यूशन में आप देखिए कि ये जो आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मशीन्स है, उनके ऊपर बेसिकली जो मैं पहले बोल रहा था 1 + 1 11, that's the kind of an effect which this will bring. अब आगे बेसिकली अगर हम चलें तो एक वीडियो बेसिकली आपको एक और एग्जांपल है ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन का ही एक, तो उसका एक एग्जांपल बेसिकली इट्स अ वीडियो। An awesome experience overall. I think I'm very happy and even life को easier बनाया है, प्रोडक्ट को फास्ट। तो ये बेसिकली जो सॉल्यूशन है ये केमिस्ट्री यूनिट में पानीपत में अंदर ये डिप्लॉय हुआ था, स्टार्टअप ने करा था। इट इज बेसिकली टू जो अभी जितना भी जो वर्क अभी मैनुअली हो रहा है वहां पर बेसिकली लिखत पड़ा, जो मैं रजिस्टर्स का मैं भी बोल रहा था, उसको कैसे उन्होंने डेटा को ऑनलाइन कैप्चर करा और उससे उनको क्या बेनिफिट हुआ, ये उसके बारे में किया है, पेपर वर्क लेस किया है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, मतलब मैंने अपनी लाइफ में अभी तक ऐसा नहीं देखा तो डेटाबेस के साथ है। The theory is basically floor covering manufacturing. We are catering to the US market. We make machine-made products. We also do hand-loom products. So there is a wide variety of products. Biggest problem which we were facing was there was a lot of paperwork. So there are different facilities, different floors, different products, different way of manufacturing things. There are 400 to 500 SKUs are there. काफी पेपर वर्क करना पड़ता था, काफी रिसोर्सेज से डाटा इकट्ठा करना पड़ता था। एनालिटिकल डाटा हमारे पास था नहीं जिसको हम एक जगह इकट्ठा कर सके। ERP ये सब पे 10 years काम किया हुआ है। SAP में भी हर चीज को एंट्री करके PO वाइज एंट्री करना पड़ता था, जो मुझे सबसे अधिक चैलेंजिंग लगता था। मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे ये काफी बेटर लगा। पहले हमें लगता था कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन को चलाएंगे, इतना फ्रेंडली है, इतना यूजर फ्रेंडली है ये, और इसको जिस तरीके से आप लोगों ने डिजाइन किया है तो बहुत ही कन्वीनियंट है। जस्ट लाइक एक एंड्रॉइड फोन चलाने के जैसा ही है। शॉप फ्लोर पे बड़ी आसानी से इसको अडॉप्ट
हो गया है ये, जहाँ हमें शुरू में लग रहा था कि काफ़ी ऑपरेटर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और 1-1.5 महीना लग जाएगा, बट 5 to 7 डेज में ये बड़ी इजी ऑन ट्रैक पे आ गया। अभी हम सभी प्रोसेस का डेटा एक साथ कहीं भी और किसी भी समय एनालिटिकली मल्टीपल रिपोर्ट्स में एक सिंगल डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। प्रोडक्शन WI की रिपोर्ट्स, इस रिपोर्ट्स के थ्रू हम एंड टू एंड प्रोसेस देख सकते हैं। कस्टिंग प्रोडक्शन चार्ट्स और रील टाइम रिपोर्ट्स, ये हमारी ग्राफिकल रिपोर्ट्स है। इसके माध्यम से भी हम सभी डेटा को मंथली और डेली बेसिस पर देख सकते हैं। ये डेटाबेस है वेरी यूजर फ्रेंडली है। ये टॉप मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल, ग्राउंड लेवल पे हो, हर आदमी यूज करने में वेरी इजीली है। ये रियल टाइम है, इट्स वेरी इजीली यूज फॉर आवर इंडस्ट्री। लाइन एफिशिएंसी और शिफ्ट वाइज डाटा हम किसी भी समय देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यार्निंग कैलकुलेशन करना काफी इजी हो गया है। एक पीओ को ट्रैक करने में हमें 2 से 3 घंटे लगते थे, लेकिन अब हमें 1 मिनट में मोबाइल और डैशबोर्ड पर मैं डेटाबेस को 2 से 3 महीने से यूज कर रही हूँ, जिससे कि मैं काफ़ी खुश हूँ। हमारा टाइम भी बच रहा है और प्लानिंग भी एडवांस हो रही है। फॉर एग्जांपल हम 100 SKU को 2 से 3 घंटे में एंटर करते थे, लेकिन अब हम इसे 10 से 15 मिनट में एंटर कर रहे हैं। डाटाबेस के बाद हमारा फुल स्टॉक 100% एक्यूरेट है। अभी हम इसको कभी इस समय ऑनलाइन दे सकते। I think the biggest benefit is that all the data is real time accurate because there are less chances of error. आप देखिए ये भी एक MSME यूनिट है, ये भी छोटी यूनिट है, तो सब आपके लेवल यूज कुछ एग्जांपल्स मिलने लग गए जहाँ पे लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं और वो देख रहे हैं मतलब कि फायदा हो रहा है इससे। अब बेसिकली आई थिंक अभी इतना तो मैंने कन्विंस करवा दिया होगा कि ये चीज आपके लिए हेल्पफुल है। अब उसमें जाते हैं कि अगर आपको करना है तो उसके लिए कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो डिजिटलाइजेशन होती है वो भी एक जर्नी होती है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी को पैसे दिए कि आओ और मेरा प्लांट पूरा डिजिटाइज कर दो और 6 महीने में खत्म, तो ऐसा नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनी ने भी करा है, तो उन्होंने भी सालों साल लगाए हैं ये डिजिटाइजेशन को लाने के लिए। तो ये हमेशा बेसिकली आप उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही देखेंगे। जब आप चलना इसके ऊपर शुरू होंगे तो ये कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई नई आती रहेगी, आपको अपने आप को उसको अपग्रेड करना रहेगा और नए नए सॉल्यूशंस आएंगे। तो अभी आपने कुछ करा, उसके बाद कुछ करा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके जो भी चीज आएंगी उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही होगा। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है बेसिकली कि मशीन्स आपस में एक दूसरे से बात कर सके। सबसे बड़ा फैक्टर वही है कि मशीन आपस में बात कर सके। सेकेंड थिंग इज जितने भी जो वर्कर जो है डेटा है बेसिकली वो डेटा जनरेट हो, वो रजिस्टर्स में ना जाए, वो कंप्यूटर में जाए, क्योंकि डेटा आपको मिलना चाहिए। तो ये जो 2-3 बेसिक लेवल की चीजें हैं, ये तो बेसिक लेवल रहेगी। कोई भी टेक्नोलॉजी किस भी लेवल पर आ जाए, यहाँ से तो जब भी आप करेंगे यहाँ से तो उसकी शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो करना कैसे, बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है एक रोड मैप बनाना। तो उसके लिए पहला स्टेप है कि आप अपने प्रोसेसेस का एक असेसमेंट करेंगे कि अभी हमारे प्रोसेस किस लेवल पर हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं उन प्रोसेसेस में, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारी कॉस्ट कहां पर ज्यादा जा रही है, और हमें बेसिकली हमारे फोकस एरियाज क्या क्या हैं। तो ये सबसे, और उसके हिसाब से बेसिकली एक सॉल्यूशन रोड मैप बनता है कि किस किस स्टेप में बेसिकली आपको सॉल्यूशन लेना है। राइट, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने ये सॉल्यूशन बताया कि और आप ठीक है कि नेशनल टीम ने 4 सॉल्यूशन बताया तो हम 4 सॉल्यूशन लगा लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। जैसे मैंने बोला पहले एक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करनी है। सेकेंड लेवल है बेसिकली जो मैं बोल रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले आपका रोड मैप बनेगा, फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक डिजिटाइजेशन के लिए चाहिए होता है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एक क्रिएट होगा। थर्ड स्टेप पे बेसिकली जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फिर आप जो कि जितने भी सारे एडवांस सॉल्यूशंस हैं उसका आप एक पीओसी करेंगे। पीओसी का मतलब क्या रहता है कि जो अगर आपको अगर आपके पास 50 मशीन है, 50 मशीन में आपको अगर मॉनिटरिंग करनी है तो आप पहले 5 मशीन में करेंगे। उस 5 मशीन में करिए, आप उससे सीखिए, उसका बेनिफिट देखिए। जब आप कन्विंस हो जाए तो आप 5 से 50 में जाइए।
तो इससे क्या होगा कि आप श्योर होंगे कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में ही नहीं कर रहे, और जो जो अगर आइट्रेशंस भी करनी होंगी वो 5 मशीन में आप सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर आप वो स्केल करेंगे, करेक्ट। तो वो उसको बोलते हैं बेसिकली पीओसी। तो एक छोटे छोटे पीओसी प्लांट में करवाइए सॉल्यूशंस के लिए, और जब वो जोन सी पीओसी आपको लगे कि रिजल्ट्स दे रही हैं, वो वाले से फिर बेसिकली आप उसको प्लांट लेवल पर लेके जाइए, तो वो बेसिकली स्केलिंग। तो ये बहुत मोटे लेवल पर बेसिकली ये एक प्रोसेस रहेगा ये करने के लिए। और अब हमारा बेसिकली रोल क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सेक्टर है वो एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और गुजरात गवर्नमेंट के सपोर्ट से बना है। हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। इकोसिस्टम मतलब कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री एसोसिएशंस सब एक प्लेटफॉर्म पर आके आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट करें। सो ये बेसिकली हमारा एक इकोसिस्टम डेवलपमेंट बनाने का वो है, ऑब्जेक्टिव है। हम करते क्या है, बेसिकली इंडस्ट्री 4.0 थॉट लीडरशिप इज नथिंग बट कि हम अवेयरनेस करते हैं। तो जो सेशन जैसे हम आज कर रहे हैं, इट इज एन अवेयरनेस सेशन फॉर यू टू गेट सम लेवल ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग की टेक्नोलॉजी कैसे होती, काम करती है। दूसरा, हम बेसिकली डीप टेक जो स्टार्टअप्स, बेसिकली जो स्टार्टअप्स हैं कंट्री के अंदर, आप देख भी रहे हैं कि कंट्री में जो स्टार्टअप्स का एक कल्चर आया है वो कितना हेल्प कर रहा है कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो जो जो स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं, हम उन स्टार्टअप्स को अपने साथ जोड़ते हैं, उन स्टार्टअप्स को हम मेंटर और गाइड करते हैं ताकि वो जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडस्ट्री में काम करने के लिए रेडी रहें। जो जो अगर हमें लगता है कि गैप्स हैं उन स्टार्टअप्स में, तो उनको वो एडवाइस करके उसमें बेसिकली वो गैप्स क्लोज करवाना, इट्स बेसिकली दैट वी वर्क। उसके बाद डिजिटल मैच्योरिटी असेसमेंट, बेसिकली जब उसमें अगर कुछ जैसे एमएसएमई यूनिट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो सेज दैट कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हम बेसिकली उनका जो एक प्लांट लेवल का असेसमेंट है वो हम करके उनको हेल्प करते हैं ताकि उनको समझ में आ सके कि कौन से चैलेंजेस से कौन कौन से सोल्यूशन मिलेंगे और फिर को क्रिएट सॉल्यूशंस, बेसिकली एनेबलिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट करके सॉल्यूशंस बनाए, जिसमें होता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी डोमेन एक्सपीरियंस लाती है, स्टार्टअप अपना टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस लाती है, तो वो आपस में मिल के काम करते हैं, सॉल्यूशन बनता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इसके बाद सॉल्यूशन शोकेस, हमने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी बनाया है जिसमें अलग अलग तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन बेसिकली एक रखा है। तो any manufacturer can go and then they can see the solutions और समझ पाए कि उसका एक बेसिकली एक डेमो रहेगा उस सॉल्यूशंस का। और हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी बेसिकली कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी रिसर्च जैसे आईआईटीज हो गए, आईएम्स हो गए, उनके साथ भी बेसिकली कोलैबोरेट करते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि इन इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च हुई है, जो कि रिसर्च हुई और वो कहीं यूज नहीं हुई, बेसिकली जर्नल्स में रह गई, तो वो जो रिसर्च है वो बेसिकली उन रिसर्च को हम लेके इंडस्ट्री के सामने लाते हैं ताकि इंडस्ट्री उन रिसर्च को देख के और कुछ उनमें से कुछ सॉल्यूशन बेसिकली वो यूज कर सके। तो रिसर्च बेसिकली इंडस्ट्री के पास पहुंचाने के लिए हम वो काम करते हैं। तो ये बेसिकली एक बड़े लेवल पर हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जो हम कर रहे हैं। अभी हमारा फोकस लार्ज कंपनीज और एसएमई दोनों से हम करते हैं काम। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एसएमईज के साथ कर रहे हैं, हम लार्ज कंपनीज के साथ भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलें कि हमारा परसेंटेज जो एफर्ट रहता है, मतलब करीब 25 से 30% लार्ज कंपनी के साथ हमारा एफर्ट रहता है और 70% अभी हमने अपना एफर्ट एमएसएमई को दिया हुआ है, क्योंकि हमें ये लगा कि इस सेक्टर को इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। बड़ी कंपनी के पास फिर भी रिसोर्सेज हैं कि वो अपने रिसोर्सेज से वो चीजें ये करवा सके। अब एक बेसिकली एक प्रोग्राम हमने लॉन्च करा था बेसिकली, जिसका नाम है उद्यम 4.0 फोरम, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फोरम। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि नेशनल लेवल पर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की सक्सेस स्टोरीज बनाना, इंडस्ट्री को प्रिपेयर करना ऑन द टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, सो दैट मोर एंड मोर कंपनीज कैन लर्न फ्रॉम देम और एक
एक नेशनल लेवल पर बेसिकली ओवरऑल टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बढ़ सके। तो उसके लिए प्रोग्राम है। इसका बेसिकली ये जो 4 स्टेप्स हैं, बेसिकली हमें आई विल गो इनटू काइंड ऑफ एन ईच ऑफ द स्टेप। सबसे पहला स्टेप जो रहता है बेसिकली स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और कैपेबिलिटी बिल्डिंग। ये होता कैसे है? बेसिकली जैसे सबसे बड़ा एक फैक्टर आया था कि डिजिटल स्किल्स कंपनीज में नहीं है, तो उसको करने के लिए बेसिकली जो स्टेप जो रहता है कि हम डिफरेंट सेशंस बेसिकली करते हैं। फर्स्ट लेवल पर बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स के जो एसएमई के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जो लीडरशिप टीम है, जो मैनेजमेंट है, उनके लिए हम मास्टर क्लासेस करते हैं। उसमें क्या रहता है कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स को लेके आते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं एसएमई लीडर्स को, ताकि इट्स मोर ऑफ ए स्ट्रेटेजी लेवल थिंग कि कैसे टेक्नोलॉजी से हम कंपनी में कॉस्ट सेव कर सकते हैं। तो वो जो है ये कंपनी की लीडरशिप के लिए मास्टर क्लासेस हैं। उसके बाद जो फंक्शनल जो टीम है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, और जो टेक्निकल टीम या फंक्शनल टीम या बोलती हैं या फिर ब्लू कॉलर वर्कर्स, उनके लिए मंथली सेशंस करते हैं। ये सोल्यूशन स्पेसिफिक रहते हैं। जैसे किसी मंथ में हम करेंगे कि शॉप फ्लोर के अंदर विजिबिलिटी कैसे लाई जाए, किसी मंथ में हम बात करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करा जाए, किसी में क्वालिटी कैसे इंप्रूव करी जाए। तो हर महीने एक टॉपिक लेके उसके ऊपर डिटेल्ड एक अवेयरनेस की जाती है स्पेसिफिक ऑन दैट एरिया। एक नॉलेज बैंक बना है बेसिकली, जिसके अंदर अलग अलग, जैसे आपको कुछ केस स्टडीज आज शेयर करी, तो एक पूरा एक केस स्टडीज उसमें रहेगा, और काफी सारे बेसिकली एक सेशंस भी हमने ऑनलाइन करे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अगर कोई कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी को समझना चाहे, या एआई क्या होता है, आईओटी क्या होता है, एनालिटिक्स क्या होता है, उसके बारे में अगर समझना चाहे तो हमने ऑनलाइन कोर्सेज बनाए हैं। तो ताकि अगर आप वो कोर्सेज करना चाहें, आप जाइए वो कोर्सेज करिए। और सबसे बड़ा है कि अगर आपने कुछ लेवल के कोर्सेज कर लिए तो हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे कि आप लर्निंग चैंपियन। तो इससे आपकी एक अपनी एक ब्रांडिंग होगी। और अगर कंपनी के अंदर 10 लोगों ने वो कोर्सेज कर लिए तो हम उस कंपनी को भी अवार्ड करेंगे कि यू आर ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज बेसिकली टू एनकरेज द लर्निंग इन दैट एसएमई ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि अगर ये स्किल्स आ जाए और अगर आपको थोड़ा लेवल का भी एक पता लग जाए कि सॉल्यूशंस को कैसे डिप्लॉय करवाया जा सकता है, तो आपको आगे से किसी भी कंसल्टेंट की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको कह सकता हूं। तो हमारा फोकस ये है कि आप सारी चीजें इतने खुद कैपेबल हो जाए ताकि आप सारे खुद करवा पाए, आप कंसल्टेंट को ना ढूंढे। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बेसिकली हम काम कर रहे हैं। 1 साल का बेसिकली हम आपसे टाइम मांगते हैं कि जब आप हमारे साथ जुड़िए तो हमें 1 साल दीजिए। उस 1 साल में आपको स्किल भी डेवलप करवाएंगे और कुछ सॉल्यूशन भी आपके साथ मिलके वो डिप्लॉय करवाएंगे, ताकि आपको थोड़ा सा एक अवेयरनेस लेवल एक आपके अंदर एक आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा स्किल बिल्डिंग। सेकेंड स्टेप बेसिकली रहेगा सॉल्यूशन एडॉप्शन। तो जब स्टार्ट होता है बेसिकली असेसमेंट से, तो उसमें जैसे मैंने पहले बोला था कि 2 दिन का एक असेसमेंट रहेगा। उसमें 2 दिन में हम एक एक्सटर्नल और कंसल्टेंट को लेकर आएंगे। वो 2 दिन तक एक ऑर्गेनाइजेशन के आपके हर प्रोसेस को स्टडी करके उसमें बेसिकली एक बेंचमार्किंग बनेगी कि अभी आप किस लेवल पर हैं, और उसमें एक कंपैरिजन भी होगा कि आप अभी इस लेवल पर हैं और ग्लोबली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस लेवल पर हैं, और उसमें और आपने कितना डिफरेंस है। और वो बेसिकली एक मल्टीपल पैरामीटर्स पे रहता है जिसमें मेजर करते हैं। सो मे बी एक स्लाइड उसकी भी है जो पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं जिसमें असेसमेंट होती है। और इनसे बेसिकली जब वो असेसमेंट से एक फैक्टर ये रहता है कि अभी किस लेवल पर है। सेकंड कंसिडर करा जाता है कि आपकी अभी कॉस्ट कहां पर जा रही है, कि आपकी लेबर कॉस्ट ज्यादा है, यूटिलिटी कॉस्ट ज्यादा है, या रीवर्क मटेरियल वेस्टेज ज्यादा है, तो कौन कौन सी कॉस्ट आपकी ज्यादा है। तीसरा आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 2 साल का आपका विजन, 3 साल का आपका विजन क्या है। और चौथा जो एक बेंचमार्किंग कह रहा था कि आप में और बाकी कंपनीज में किस लेवल का डिफरेंस है। इन सबको लेके एक एनालिटिकल मॉडल की हेल्प से बेसिकली एक रिकमेंडेशन बनती है जो कि टेक्नोलॉजी रोड मैप बनता है। तो उसमें बेसिकली आता है कि आपको फर्स्ट ईयर में ये सॉल्यूशन करवाने चाहिए, सेकंड ईयर में ये सॉल्यूशन करवाने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको एक सॉल्यूशन अप्रोच मिल जाती है। तो ये होके उसके बाद बेसिकली जब ये सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी रोड मैप बन गया
उसके बाद जो कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूशन का हम आपको डिप्लॉय करने में हेल्प करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप रहेगा कि उसके लिए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस बनाना, क्योंकि आपके यहाँ पर कोई टेक्निकल टीम नहीं है, तो बेसिकली हमारी टीम वो उसके लिए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाएगी। वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस फिर हमारे साथ जैसे जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको फ्लोट करी जाएगी। स्टार्टअप्स उस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अपने अप्रोचेस और सॉल्यूशंस हमें प्रेजेंट करेंगे। उसमें से जो भी हमें बेस्ट लगेगा वो सॉल्यूशन बेसिकली आपके पास आएगा और वो स्टार्टअप आपको आके प्रेजेंट करेगा। फिर स्टार्टअप और आप आपस में बेसिकली एक एग्रीमेंट लेके स्टार्टअप आपके यहाँ पे सॉल्यूशन डिप्लॉय करेगा और हम उस प्रोसेस में बेसिकली ओवरसी करेंगे कि पूरा जो काम है वो ठीक से हो रहा है। जब वो सॉल्यूशन डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद एक केस स्टडी बनाएंगे कि जिससे आपको मिले कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट करी और क्या आपको बेनिफिट हुए। फिर वो जो केस स्टडी है बेसिकली दैट वी विल आल्सो प्रमोट इन ए मीडिया सो दैट यू गेट सम लेवल ऑफ विजिबिलिटी कि ये जो कंपनी है इसने इन्वेस्ट करा टेक्नोलॉजी में, बेनिफिट लिया और ये डिजिटल की तरफ आगे बढ़ रही है। तो एक कंपनी की भी एक ब्रांडिंग होती है। सो वो बेसिकली एक थर्ड स्टेप रहेगा। और इसके अलावा जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बेसिकली एक बोल रहा था कि एक हमने जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी बनाया है, इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरर जा सकता है और उसमें बेसिकली अलग अलग डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, वो स्टार्टअप सोल्यूशन डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इट इज बेसिकली ए परमानेंट एग्जीबिशन ऑफ द manufacturing solutions. Any manufacturer can go and they can see the solutions which are there, which are possible. ये sector specific नहीं है, ये manufacturing specific है, but solutions mostly common ही रहते हैं। तो जो solution एक industry में है वो same solution आपके यहाँ भी use होगा। उस थोड़ा सा बस ये है कि उसको खुद को समझना पड़ता है कि कैसे वो applicable होगा। तो ये बेसिकली अलग बेनिफिट रहता है। तो ये बेसिकली फोरम बनाया है जिसमें हम लोग जुड़ रहे हैं और उसमें 3 लेवल का बेसिकली रहता है। फर्स्ट लेवल पे कंपनीज कैन ज्वाइन दिस फोरम जस्ट एट ए फर्स्ट लेवल में बेसिकली जो भी स्किल बिल्डिंग का जो था, जो लीडरशिप के लिए क्वार्टरली सेशंस और मंथली सेशंस, टीम्स के लिए जितने भी स्किल बिल्डिंग वाले सेशंस हैं वो सारे उसमें कवर रहते हैं। सेकेंड लेवल बेसिकली इस डिजी अडॉप्टर, तो उसमें जो सोल्यूशन एडॉप्शन वाले जो कंपनीज वो बेसिकली वुड वांट टू अडॉप्ट दी सॉल्यूशंस, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए बेसिकली इज दी सेकंड लेवल। थर्ड लेवल बेसिकली जो है ये हमारा, अगर कोई कंपनी 500 करोड़ से ज्यादा 1 से 1000 करोड़ तक की है, उन कंपनीज के लिए है। ये बेसिकली और डिटेल में जाके इसमें डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप्स और काफी ज्यादा उसमें और डिटेल रहता है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाता है। तो ये 3 लेवल बेसिकली हमने बनाए टू हेल्प दी इंडस्ट्री। और ये प्रोग्राम इज ओनली एलिजिबल फॉर द कंपनीज हु आर अप टू 1000 करोड़ एंड बिलो। सो वी डोंट ऑफर दिस टू द कंपनीज हु आर 1000 करोड़ एंड अबव, बिकॉज दिस इज अ वेरी हाईली सब्सिडाइज्ड। इसमें हमारे जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो हम पूरे कवर भी नहीं करते हैं बेसिकली। सो वी यूज मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड्स इन दिस टू रन दिस प्रोग्राम। तो दैट्स बेसिकली एक वीडियो है बेसिकली व्हिच यू कैन गो बैक एंड देन यू कैन प्ले। सो बेसिकली व्हिच विल टेल यू अबाउट दिस प्रोग्राम। The gap between the virtual and real world is reducing in an unprecedented manner, resulting in ease of operations, but at the same time demanding higher efficiency and flexibility in our plants. Riding this wave, Government of India has taken active steps towards leveraging the technology potential in the manufacturing sector through the clarion call of Industry 4.0. A uniform, implementable and efficient digitization of manufacturing sector across India is at the core of Industry 4.0. NASSCOM, Center of Excellence, a Digital India initiative led by Ministry of Electronics and Information Technology and Government of Gujarat. It is the largest deep tech innovation ecosystem in India that was set up to accelerate Industry 4.0 adoption to solve the real-world manufacturing challenges. Udyam 4.0 Smart Manufacturing Forum is an initiative of NASSCOM COE to help manufacturing enterprises in India with annual turnover less than 1,000 crore to start, scale and sustain the manufacturing transformation. We aim to address the awareness, accessibility and affordability challenges
that manufacturing enterprises face in technology adoption. Smart Manufacturing Forum helps enterprises through skill and capacity building, handholding for digital journey, and branding and market reach. Make your workforce future ready, as our skill and capacity building sessions will develop digital awareness across all the levels of the organization. These include interactive masterclasses for business and functional leaders and capability building sessions for managers. A knowledge bank comprising case studies, research reports, webinars, and thought leadership sessions are available to the companies with a free round-the-clock access. These programs enable the workforce to emerge as certified learning champions to propel the organization's digital journey. Hand-holding support for digital journey begins with digital maturity assessment, which is backed by plant visits, virtual meetings, management interactions, and analytical frameworks. It entails building of a digital roadmap on the organization's KPIs by evaluating the current state of maturity of the company, while design thinking workshops can be conducted to prioritize the digital solutions. Support shall be provided in identifying use cases where technology can help in addressing manufacturing challenges. Post this, manufacturing enterprises will get engaged through interactions with deep tech startups. Mentoring support from senior leaders from large organizations is provided to help you learn from their experiences. Branding and market reach. To propel companies into a new tangent of growth, the companies can get their success stories promoted through media channels, social media presence, and the website. Selected manufacturers can engage with peers by speaking about your success stories in panel discussions and case study presentations, thereby gaining brand visibility as a smart manufacturing company. Plethora of networking opportunities. These being the three-pronged approach of Udyam 4.0, Smart Manufacturing Forum towards implementing Industry 4.0 in manufacturing sector. There are certain special privileges which have been coined for the member companies. This include dedicated access to SMCC, Smart Manufacturing Competency Center, which is a virtual platform to help senior manufacturing leaders improve efficiency, productivity and safety in plants through experiencing end-to-end smart manufacturing solutions. Become a part of Udyam 4.0, Smart Manufacturing Forum, and accelerate your digital journey. There are multiple subscription options as per your stage of digital journey. To join the forum, write to us at smartmanufacturing@nascom.in. So I think that's it from me. So hopefully I would have created some level of an understanding कि कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है, होती क्या है, एंड अगर आपको करना है तो आगे कैसे बढ़ना है. अब हम बेसिकली एक आपको so there is a startup basically who's with us. They are part of our program. They are also based at Gandhinagar, and they have deployed this solution in the textile industry also. So that way we thought कि it will be good to kind of hear from them also specific on from a solution provider now who has provided this solution to the industry. So I'm happy to invite Amit Gohil. So he is basically the CEO of Alex, and he's joined by his teammates. Sorry, I forgot your name. Shrenik. Sorry. So both Amit and Shrenik basically अब हमें basically एक solution का एक demo देंगे जो उन्होंने डिप्लॉय करा है, एंड इट इज ऑन दी शॉप फ्लोर डिजिटाइजेशन. बेसिकली जहाँ पे आप प्लांट में मशीन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो एफिशिएंसी लेवल को बेसिकली कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन के बारे में भी आपको बताएं. Namaste everyone. Myself Amit and Mr. Shrenik. We are from IoT Dashboard. First, we would like to thank Amit ji, NASCOM team, and SGCCI for giving us this wonderful opportunity to present our product here in this comfortable environment, right? Let's start with that. So, यहाँ पे सभी लोग मशीन मैन्युफैक्चरर हैं, राइट? वो मशीन यूजर्स हैं, राइट? तो
इसमें से किन लोगों को पता है उनका मशीन इस मोमेंट में ऑन है या ऑफ है? व्हाट इज देयर प्रेजेंट प्रोडक्शन? अभी आपका कितना प्रोडक्शन हुआ है सिंस मॉर्निंग टू नाउ? लास्ट 7 दिन का कैसा ट्रेंड था? इट वाज गोइंग अपसाइड, डाउनसाइड? क्या ट्रेंड था? लास्ट 30 डेज का क्या ट्रेंड था? कितना टाइम आपका मशीन पावर ऑन था? बेसिकली यहाँ पे भी पावर आउटेज का प्रॉब्लम हो रहा होगा डिस्कॉम के साइड से। तो वी हैव अ रेट्रोफिट IoT टूल टू मॉनिटर दैट थिंग। सो दिस इज अ प्रॉब्लम कि हाउ टू मॉनिटर मशीन एफिशिएंसी। सो बेसिकली चीज क्या था कि आपको डेली मशीन का प्रोडक्टिविटी ट्रैक करना है और डाउन टाइम निकालना है। तो वी हैव क्रिएटेड अ हार्डवेयर, देन अ सेंसर मैकेनिज्म। दिस इज फॉर वी इम्प्लीमेंटेड फॉर द रोटरी प्रिंटिंग मशीन। उसका जो इनफिट रहता है ऊपर, देयर वी प्लेस अ सेंसर, गेट द डेटा एंड अपलोड इट टू डैशबोर्ड। We are taking only 1 or 2 data, but out of that data, from that analysis, we can give so much benefit. मतलब क्या क्या हम दे सकते हैं? First, आपका मशीन अभी ऑन है या ऑफ है? What is the present situation? This you can see from a laptop, mobile. It is basically a web-based application. Then, how many hours आपका मशीन पावर ऑन है? ऑपरेटर है, उसने तो 8 बजे अंगूठा लगा दिया, बट आपका मशीन 8 बजे ऑन होता है और 10 बजे ऑन होता है या 11 बजे ऑन होता है। दिस कैन टेल यू। देन आपका मशीन 6 घंटा 40 मिनट ऑन है, पावर अप है, बट एक्चुअली हाउ मेनी आवर्स उससे प्रोडक्शन निकाला है? 2 आवर्स। आप सोचते हैं कि मशीन 18 घंटे चलाना है, बट वो 6 घंटे चलता है। आप सोचते हैं कि ऑपरेटर बढ़ा दिया, उसको ज्यादा सैलरी दिया तो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा। हैपन हो रहा है। अगर रातों रात चलो ऑर्डर ज्यादा आ गया, अभी आपका कैपेसिटी उससे डबल ऑर्डर आ गया, तो डू यू नीड टू इन्वेस्ट 1 more मशीन फॉर 1 more मशीन? और आप एग्जिस्टिंग मशीन में ही आप कर सकते हैं। अगर डेटा है तो यू कैन एनालाइज इट। कोई भी चीज को अगर इंप्रूव करना है तो फर्स्ट केस क्या है? यू हैव टू मॉनिटर इट, राइट? देन थर्ड, डेली लेंथ कितना निकला है? व्हाट इज द आइडियल टाइम? लास्ट 7 डेज का कितना है? 30 डेज का कितना है? दिस इज मशीन ऑपरेटिंग ट्रेंड। व्हाट इज ऑपरेटिंग ट्रेंड? रोटरी प्रिंटिंग मशीन में क्या रहता है? व्हेन वन डिजाइन स्टॉप्स, सेकंड डिजाइन स्टार्ट करना रहता है। तो इन बिटवीन स्क्रीन का क्लीनिंग रहता है, काफी प्रोसेसेस रहता है। तो जनरली जो टेक्सटाइल में उनको मालूम होगा हाउ मच टाइम इट विल टेक, 45 to 1 hour। हमने ऑब्जर्व किया इट इज मोर देन 2 hours। प्रॉब्लम क्या था? ऑपरेटर का प्रॉब्लम था? नहीं, प्रॉब्लम ये था कि वहां पे जो वाटर जेट रहता है क्लीनिंग के लिए, उस पर प्रॉब्लम था। दैट वाज नॉट रिपोर्टेड। सो एवरी टाइम 2 hours डेली स्क्रीन चेंज टू स्क्रीन चेंज ये हो रहा था। बट बिकॉज ये डैशबोर्ड में दिख रहा है, दे कैन टेक दैट डिसीजन कि ओके, दे कैन आइडेंटिफाई द डिसीजन। एंड देन यहाँ पे डेटा मिल रहा है, दिस इज द लास्ट 7 days ट्रेंड। ये सारा चीजें हुआ जस्ट एक सेंसर एंड IoT इम्प्लीमेंटेशन से। हाउ मच इट विल कॉस्ट? जस्ट एक कॉस्ट एस्टिमेशन, it starts with 10,000 rupees. That's it. It is not बहुत पैसा लगेगा ये वो। नहीं, it is very simple solution. Now I will give mic to Mr. Shanik. So good evening all of you. So by implementing the IoT device in any machine or in the textile machine, you can get more and more benefit. Like in rotary printing machine, sometimes what happens when there is a design change. So the operator has to clean the screen and he has to get another screen for the new design. So it takes a lot of time. So the operator has to go here and there and he is wasting a lot of time. So there is a loss of the production also. So to monitor that by this IoT device, we can monitor why his machine is producing less production, why the machine is stopped for more than 2 hours. So this is the benefit of the IoT device. Another thing is that by monitoring and analyzing the data, the owner of the machine can increase the productivity, which can help him to get more and more production. And another benefit is that it can reduce the downtime of the machine, because due to the downtime of the machine there is a lot of maintenance work has to be done. So it can reduce the maintenance cost of the machine also.
So we have different IoT products for with us. This is the IoT dashboard, email summary, Telegram mode, and this is the hardware. So by the dashboard, one can do the analysis of the machine to know the efficiency of the machine, productivity, and downtime. And day to day, if the owner wants the daily production report, so he can get the production report through email summary. If the owner wants to talk with the machine, so he can talk with the machine through Telegram mode. So he can get the status of the machine. So you can give the message that, hi, please find device status of last 45 minutes. So he can say, so for 61 times it was online and for 24 times it was offline. So the owner of the machine can talk with the machine, just like we are chatting with in the WhatsApp messages. So in the same way, we can talk with the machine. And this is the hardware device which can be implemented or installed in the machine to get the real-time data of the machine. So thank you for listening to us, and let's make Digital Bharat. And if anybody has any query or any question, they can contact us. And if you want some more details, so please give your contact details, which we have given the form at the outside. So you can fill the form and you can share your details also. Thank you very much. I think अभी थोड़ा क्लैरिटी आया होगा कि मतलब वो सॉल्यूशन बेसिकली वो दिखता कैसे है. सो ये बेसिकली एक एग्जांपल है. तो ऐसे ही देयर आर मल्टीपल स्टार्टअप्स इन द कंट्री बेसिकली हु आर डूइंग सच ए गुड वर्क. सो इट इज ओनली दैट आई मीन यू आर नॉट अवेयर ऑफ कि कितने स्टार्टअप्स हैं और वो क्या आपके लिए हेल्प कर सकते हैं. तो आई थिंक दैट्स द पॉइंट कि आप अभी This is the dashboard. This is the live dashboard. You can see the live data of the machine right now. One of the device we have installed in Ahmedabad, and it is installed in rotary printing machine. Demo dashboard. This is the demo dashboard. So you can see what is the status of the machine. It is in the run mode. It is on for last 19 hours. The machine is on for 19 hours. Out of that, the machine has given the production for 10.5 hours. So sometimes what happens, the owner of the company which has spent lot of money on the machine, he has an impression that my machine is running for 18 hours, and out of 18 hours of production, the machine is only giving production of only 10.5 hours. So he can have a discussion with his employees, so why he is getting such less production. So he can improve his operational work, so he can get more and more production. This is the stoppage time. This is the daily length, last 7 day production data and last 30 days of production data. So you can do the analysis. Okay, what is the efficiency of my existing machine? Okay, and what another thing is that by the analysis of the downtime, you can reduce the maintenance cost, because sometimes what happens, there is a lot of downtime. So for repairing cost and maintenance cost, they have to purchase the spare part. So they can do the analysis why every time for some problem they have to purchase some component. So they can do the analysis. So that is the thing. Thank you. So I think so just one example. So there are a lot of other examples which are there. So I think जब आप exploration process अपना start करेंगे, there are a lot more things that we can share with you. Just to help us basically, आप अगर इस स्टेज पर बेसिकली so आपको एक फॉर्म बेसिकली दिया है, इसमें अगर you can take maybe a minute or two, what we want to understand is आपके अभी मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस किस टाइप पर हैं. जैसे हमने आपको शेयर करे, मतलब कि जैसे हमने बाकी कंपनियों से हमने सुना कि उनके चैलेंजेस क्या हैं, कि आपके अभी टॉप 3 चैलेंजेस क्या हैं, आप क्या टॉप 3 एक्शंस लेना चाहते हैं. सो आपके दिमाग में है वो एक्शन लेना है, लेकिन अभी ले नहीं पा रहे, उन्हें किस वजह से होगा वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए. तीसरा बेसिकली ये है कि NASSCOM को और क्या करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, या और कुछ इस एनी अदर वे वी कैन हेल्प यू. बेसिकली दिस विल हेल्प अस इन डिजाइनिंग अवर प्रोग्राम्स बेटर. अगर हमें आगे और प्रोग्राम में हमें चेंजेस करने हुए तो उनके लिए अगर आपके कोई सजेशंस हैं प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के लिए जैसे आपको जो प्रोग्राम शेयर करा उसके लिए कोई सजेशन है और कोई सजेशन हमें करना चाहिए जिससे कि हम आपकी बेटर हेल्प कर सकें.
तो वो एक है, आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप इनपुट दे पाए तो हम अपने, दिस इज बेसिकली टू हेल्प अस डिजाइन बेटर प्रोग्राम फॉर द इंडस्ट्री. Thank you for listening to me, and thank you again to the SGCI for giving us this opportunity to share our views. Thank you, Amit ji. It was a wonderful, enlightening session for all of us, and today we have been aware that what type of things can things can make drastic change in our business. Before we proceed with the question answer session, I'd like to hear some views of our past president and PSV chairman, Sri Bharat Bhai Gandhi. Bharat Bhai, તમારે કંઈક આ વિશે બે શબ્દો તમારા આજની ટેકનોલોજીમાં આની ઉપયોગિતા માટેનું. Good evening. First of all, I welcome Amit ji and his team, and I am thankful to our President Budawala and his team to give me some time to speak. So what you have said is absolutely right, and this Udyam 4 scheme, those who are interested should take advantage of that. उसका लाभ लेना चाहिए आपको. और इसमें जो मैंने आज ये पढ़ा, एक्चुअली आई एम वन ऑफ द वेरी रिटायर्ड मैन, यू नो, लेकिन ये जो उन्होंने बोला तो मेरा लड़का देख रहा है, करीब 100 लूम्स एयरजेट है और बाकी का पावर लूम है, लेकिन इसमें से हम लोग 30% कर रहे हैं कि भाई एक लूम्स है, एक वार्पिंग से अंदर यान आया, यान से हमारा जो वीविंग है वो वाइंडिंग पे गया, वाइंडिंग से वो टीओफओ पे गया, रीवाइंड हुआ, देन वो वार्पिंग पे गया, वार्पिंग से फिर वो किधर कितना बीम निकला, स्टार्ट फ्रॉम दैट, ग्रे में किया किसने किया, तो वो जो एनुअल जो मंथली इनका सैलरी भी करता है तो वो ऑटोमेटिक उसमें आ ही जाता है. सो इट इज ऑलवेज एडवांटेजेबल, बट देन ऑल्सो जो एक बात है कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये जो मैं देख रहा हूँ तो मैं तो अभी बाद में इनसे इंटरेक्शन करूंगा, और ये जो सैनिक भाई है, हिमांशु भाई परमार है, अमित गोयल जी है, और सब जो टीम है, और जो बॉस मिस्टर अमित भाई है, तो मैं तो नेक्स्ट वीक इनसे इसका इंटरेक्शन करके मैं असाइनमेंट देना चाहता हूँ. अगर वो लोग एक्सेप्ट करेंगे तो आई बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, एंड वेरी एंड आई जस्ट वांट सम इंफॉर्मेशन दैट एनीथिंग टेक्सटाइल और इंडस्ट्री में लाइक अरविंद और वो जो बिगेस्ट यूनिट है बागवाड़ में उधर जो है, तो उसमें कोई रोबो सिस्टम इंट्रोड्यूस अभी तक कुछ हुआ है? दैट्स सो ये जो एग्जांपल्स बेसिकली शेयर करें, ये सारे इम्प्लीमेंट हुए हैं और ये स्टार्टअप्स ने इम्प्लीमेंट करें. इसमें से जो हमारे जो फोरम है बेसिकली ये 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था, और इस फोरम में हर इंडस्ट्री के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, करेक्ट? जैसे मतलब हर इंडस्ट्री के लोग, जिसमें एक टेक्सटाइल यूनिट ऑलरेडी है जो अहमदाबाद में है, जो बेसिकली वाज पार्ट ऑफ इट, और उन्होंने सॉल्यूशन अडॉप्ट की, मतलब दे ऑलरेडी हैव डिप्लॉयड द सॉल्यूशन डिप्लॉयमेंट अभी 15 दिन पहले ही खत्म हुआ है. अभी दे आर इन द फेस ऑफ बेसिकली कि वो अपना जो इम्पैक्ट है, जैसे मैं बता रहा था, इट्स एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशन उन्होंने लगवाया है, 5 मशीन में लगवाया है. अभी वो उसमें देख रहे हैं कि कितना उनकी एनर्जी सेविंग हो रही है, और उसके बाद उनका प्लान यही है कि पूरे प्लांट में अगले 3 से 6 महीने में पूरे प्लांट में वो लग जाए. तो ये बेसिकली फर्स्ट लेवल का सॉल्यूशन था. उसके अलावा दूसरा भी बेसिकली एक RFID सॉल्यूशन फॉर टू ट्रैक बेसिकली उसका भी बेसिकली हम उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं. तो जो एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, वो उस जर्नी पर वो आ चुके हैं. तो एक टेक्सटाइल यूनिट ऑलरेडी हमसे बेसिकली जुड़ चुकी है, और हम जो बेसिकली जैसे अब जो मैंने बोला था कि करीब 25 से 30 बेसिकली तक करेंगे, उसमें से हमारा यही रहेगा कि हम सब इंडस्ट्रीज पे फोकस कर सकें. तो टेक्सटाइल में मतलब 5 से 7 यूनिट तक हम जाएंगे, क्योंकि
एक इंडस्ट्री को भी हेवीली फोकस मतलब नहीं करना, सारी इंडस्ट्री को बेसिकली वी विल एनीवे ट्राई टू क्रिएट दी सक्सेस स्टोरीज। तो और हम बेसिकली देयर आर व्हिचएवर इज द नेक्स्ट maybe 4 to 5 more units of textile that we will do. So क्योंकि हमारी भी एक कैपेसिटी एक बैंडविड्थ रहता है। तो अमित जी, हाँ जी, रोबो सिस्टम रोबो आया है, like in China spinning mill, हाँ, I had seen that robot, जो भी खराब कोन है वो सही कर देता है। वो दैट इज इवन मच इजियर देन व्हाट वी आर सेइंग। वो तो मतलब ऑटोमेशन वाला चीजों को इम्प्लीमेंट करना भी उतना मुश्किल नहीं। मतलब वो अगर जैसे क्वालिटी का आप जैसे करे कि एक कैमरा इंस्पेक्ट कर रहा है, उसके बाद वो उसको रोबोट आके उसको हटा दे, वो दैट इज इजी, बट इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव व्हाट वी विल से। तो हम इट इज वेरी मच पॉसिबल टू डू इट, वेरी मच पॉसिबल। Thank you, sir. So the floor is open for the question answer session. Anyone who want to be specific, the floor is open. I request Mr. Chetan, he has some questions. So we'll start with Chetan and then followed by the other members. थैंक यू बशीर भाई। अमित जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, पर मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग वर्क कर रही है, प्रोसेस हाउस इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वो सबका और उनका जो पॉकेट है वो बहुत छोटा हो रहता है, 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़। तो उसके अंदर नास्कॉम कैसे हेल्प कर सकता है? तो ये जो सोल्यूशन है, ये ऐसे कोई बहुत एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस हमने नहीं, मतलब जितने भी सॉल्यूशंस बताए हैं सारे लो कॉस्ट एंड इजी टू डिप्लॉय सॉल्यूशंस हैं। अभी जैसे अमित ने बताया कि ये जो एक सॉल्यूशन है, आप अगर आपको जब आप लगवाना शुरू करेंगे, आप छोटा से एक मिलाएंगे तो आप 10,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मतलब these solution और क्वालिटी वाले जैसे जो solutions रहते हैं इंस्पेक्शन के, it can be there between anywhere between the 5 lakh to 15 lakh। उसमें जो कॉस्ट बढ़ती जाती है वो बेसिकली ऑटोमेशन की बढ़ती है कि जैसे आप बोल रहे थे एक रोबोट लगाना है कि जो कि अपने आप उस मटेरियल को हटा दे, या कैमरा अपने आप बेसिकली एक कन्वेयर बेल्ट चलेगा जो कि मटेरियल को मूव करता है, उसकी कॉस्ट आती है। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट इंक्रीमेंटली उतना नहीं बढ़ती। तो जितने भी सॉल्यूशन है, मतलब ये 25 करोड़ की कंपनी भी उसको इट इज वेरी मच जस्टिफाइड फॉर ए 25 करोड़ कंपनी। अभी जो हम जैसे मैंने टेक्सटाइल कंपनी में बताया कि काम कर रहे हैं, वो भी एमएसएमई और छोटी कंपनी है, करेक्ट, वो नॉट ए बिग कंपनी। तो दीज आर वेरी मच, मतलब 25 करोड़ की कंपनी है अगर है तो वो छोटी नहीं है इन सॉल्यूशंस के लिए। ये सॉल्यूशंस उनको 25 करोड़ की कंपनी को भी आरओआई लाके देंगे। थैंक यू वेरी मच। एनीवन क्वेश्चन? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ये आपका उसमें क्या फर्क है? जो सोल्यूशन है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो कि मतलब ह्यूमन ब्रेन से कहीं ज्यादा लेवल पर काम करने के लिए कंप्यूटर के अंदर जो एक कैपेसिटी है वो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है। इट जस्ट लाइक वर्क लाइक ए ह्यूमन बट विद मच मोर प्रोसेसिंग पावर, क्योंकि उसके पास प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जो सॉल्यूशंस हमने बताए, जैसे कि क्वालिटी का जो सॉल्यूशन है और जितने भी बाकी सॉल्यूशंस बताए, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो जो स्टार्टअप्स डिप्लॉय करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करके ही वो सॉल्यूशन बनाते हैं। आपने 4.0 बताया है, लेकिन दुनिया के अंदर तो 6 या 7 और 8 आ गया है। नहीं, अभी इनफैक्ट 4.0 भी इंडिया की अगर हम बात करें तो मतलब वर्ल्ड में भी 4.0 से आगे कुछ नहीं आया अभी। 4.0 इज द मैक्सिमम दैट इज देयर। जो इंडिया में है, इंडिया में अभी हम 2.0 to 3.0 पे ही चल रहे हैं। जो बाकी ग्लोबली कंपनीज हैं 4.0 पे हैं। अभी डिस्कशन स्टार्ट हुए हैं कि 5.0 कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा। It is not true. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
अमित जी मुझे थोड़ा बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना, इट इज सूरत के अगर इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इट इज अ हब ऑफ एमएसएमई, जहाँ पे आपको जो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी जिसे हम कन्वेंशनल लूम बोलते हैं वो भी है, और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आज पुरानी टेक्नोलॉजी जो आज समझो 125 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट पे मशीन चलती है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 1100 आरपीएम पर चलती है। दोनों टाइप की टेक्नोलॉजी है। अब जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, अगर उसमें आपका जो ये IoT है, जैसे आपने फोन वाला दिखाया चीज, फोन को इंफ्रारेड से वो उसको, तो अगर यहाँ की एमएसएमई में कोई एमिकेबल सॉल्यूशन आपका नास्कॉम देती है तो इट विल बी वेरी गुड हेल्प टू द इंडस्ट्री। जो 2-3 एरियाज ऐसे हैं जिससे मैं पर्सनली भी, जैसा भरत भाई ने बोला, शायद कभी माइंड में वही चल रहा है, तो वो ऐसा है और वो बहुत सिंपल है। अगर उसका प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल में अगर यहाँ पे है सॉल्यूशन, लेकिन वो कैसे वो जो छोटे जो अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो अगर प्रॉपर 1-2-3 चीजें ऐसी है कि अगर वो IoT अगर सॉल्यूशन दे सकती है, आपके जो नेस्कॉम IoT बेस्ड है वो भी, तो इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल टू द इंडस्ट्री, जो मेनली कन्वेंशनल है उसके अंदर। उसके साथ साथ में जो प्रिपरेटरी है, जैसे भरत भाई ने बताया हॉपिंग उनके यहाँ ऑलरेडी चल रहा है, वो ऐसी कई चीजें हैं कि जिसमें हमें एक स्टडी पेपर, मतलब 1-2 दिन अपने को और माइक्रो लेवल पर स्टडी करके इंडस्ट्री को अपने को व्हाइट पेपर देना चाहिए नास्कॉम की ओर से, जो शायद इंडस्ट्री उसको पिकअप करके बहुत बड़ा इंडस्ट्री को हेल्प दे सकती है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, जो कन्वेंशनल होते हैं उसके अंदर एक जो चीज होती है, जो एक वॉश स्टॉप मशीन होती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आती है, लेकिन कन्वेंशनल उनके लिए कोई प्रॉपर चैनल नहीं है अभी भी जो वो लोग डाल सके। तो उसमें शायद आपकी जो स्टार्टअप कंपनी है या आपके नास्को में कोई भी वो उसमें हेल्प कर सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक स्टडी अपने आने वाले समय में करें मिलके साथ में चैम्बर और नास्को, और एक व्हाइट पेपर अपनी इंडस्ट्री को प्रस्तुत करें जिससे आपको हेल्प मिलेगी। मेरा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ये इंटरेक्शन है। मैं बेसिकली लिखता भी रहता हूँ, ये आर्टिकल्स बेसिकली कुछ कुछ जाते रहते हैं, तो मे बी नेक्स्ट आर्टिकल मैं मीडिया टेक्सटाइल के ऊपर डाल के, मतलब फार्मा में आर्टिकल्स गए हैं, मशीन मैन्युफैक्चरिंग के आर्टिकल्स, इंजीनियरिंग के आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, मतलब नेक्स्ट टेक्सटाइल का। और व्हाइट पेपर का आपका आइडिया अच्छा है, सो मे बी वी कैन जॉइंटली वी कैन वर्क ऑन दैट व्हाइट पेपर। हम और बाकी अडॉप्शन के लिए हम इतना बोलेंगे कि आप 5 कंपनी आगे आएंगे, आपको 1 साल में डिफरेंस देखिए, और उसके बाद आप 5 अपने बाकी 500 कंपनी को एजुकेट करिए। तो हमारा वही एक ऑब्जेक्टिव है, हम 5 कंपनी को रेडी कर देंगे ताकि आप 5 बाकी 500 को हेल्प कर दीजिए। ये अवेयर टू क्रिएट वन मॉडल, बस वही तो, मतलब वही ऑब्जेक्टिव है, हमें सिर्फ 5 कंपनी तैयार करनी है, उसके बाद 500 को आप लेके जाएंगे। Hi, first of all I would like to thank Amit ji for this session. I just have a simple question that the startups that are being integrated with NASCOM, right? So the prices that they quote, are they subsidized or it's the general prices that they are offering? For example, IoT dashboard, they just twist that the starting prices of the devices are from something around 10,000 rupees, right? So whichever startups that are means collaborated with their organization, so do they have some sort of subsidy or it's their original price? So there is no subsidy, but what will help is basically, first of all, any proposal it comes, it will go through our team. So we will make sure that the pricing is right. If the pricing is not right, it will not even go to the industry. So we will review the solution, whether technology is right, if that is the right solution or not. We will review that. We will review the costing of it. अगर हमें ठीक लगेगा, then only it will come to you. So that's the first point. Second point is, whenever we will bring you solution providers, we will never bring you one. Like today you saw Amit presented, we have more solution providers who are doing the similar solutions. So when you will get a proposal, you will get a proposal from multiple companies. So that way, startup also know that if they charge high, they will lose the contract, because there is other startups also competing with them. So that way there is it will also ensure that the right pricing basically comes out.
So if you are talking one-on-one to basically company, you will not know what is the right price. But that's where basically we have to protect your interest. We have to protect startups' interest also. We have to protect both interests. So, which is why the ecosystem का मतलब ही यही है basically. We ensure that you also give the right money to the startup. That also we will ensure. And we will also ensure that the startup is not overcharging you. And startup is giving you the right solution. Yes, so इसमें so we, like as I said, so there are two levels basically, level 1 and the level 2. Level 3 I am not going now. I mean, if it is a larger company, level 3 also I can explain, but that is more very long term. Level 1 mein it is basically where we don't have a restriction, any number of companies can come in, because in this case these are the training sessions that we will do all through the year, and it is basically each organization can nominate say 8 or 10 people from their organization, and then those 8-10 people get trained by us for an year. For second level there is a where the adoption is also there, that is basically जो second level उसमें है, और अपनी तरफ से basically हमने इसको highly subsidize करा हुआ है. Basically अगर यही solution, अगर हमें large company आके हमसे यही help मांगेगी तो हम इससे 4 times उनसे charge करेंगे. तो हम MSMEs को basically just एक educate करने के लिए है, और कॉस्ट भी हम इसलिए ले रहे हैं बेसिकली, इसके दो रीजन है. एक तो है कि हमने स्टार्टिंग में कुछ कंपनीज के साथ विदाउट कॉस्ट भी उनको हेल्प भी करेगी, लेकिन फिर हमने क्या देखा कि एंगेजमेंट लेवल कंपनी का बहुत कम हो जाता है. हम अपने एफर्ट पूरे डालते हैं और कंपनी में एक सीरियसनेस नहीं आती है. जब कंपनी कुछ पैसे देती है तो फिर वो बोलती है कि ठीक है अब इस पैसे का हमें पूरा यूज भी करना है, राइट. तो उनका एक एंगेजमेंट लेवल आ जाता है. और सेकेंड है कि फिर हम जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसका हम एटलीस्ट कुछ पोर्शन इस एक्सपेंसेस के थ्रू हम अपना कवर करते, पूरा नहीं करते. जब हम आपके साथ कंपनी के साथ काम करेंगे हमारे एक्सपेंसेस कहीं कहीं ज्यादा होंगे जितना हम आपसे लेंगे. तो हमारा जो मतलब अगर बोलूं तो लेवल 1 पे बेसिकली वी चार्ज 1 लाख फॉर 1 ईयर फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. जो लेवल 2 है दैट इज 5 लाख फॉर 1 ईयर एंगेजमेंट. बट हमारे एक्सपेंसेस इससे बनो कहीं कहीं ज्यादा. Any more questions, friends? कोई डाउट हो, कोई वस्तु आओ हमारा मगजमा होती है, और कोई फीडबैक भी है तो वो भी दे सकते हैं. मतलब सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, कोई फीडबैक है समथिंग दैट वी शुड डू व्हिच विल हेल्प द इंडस्ट्री, आप फॉर्म में भी लिख सकते हैं. So fine sir, now I'll request our secretary to produce vote of thanks. Thank you. First of all, we would like to thank our today's keynote speaker, Mr. Amit Saluja ji, who is Senior Director and Head of the NASSCOM Center of Excellence. I think we should have to give them a round of applause to Amit ji and his team for giving wonderful session, giving totally detail about how to go for digitization so that we can compete global market, especially for MSME, especially for textiles. So sir, thank you very much. Thank you, and you for inviting me and giving sir, we are here to serve the industries, and you have like we met sir I think 2 months before, and one of the programs sir and Himanshu ji just discussed about the same. And then we have finalized this program. So sir, thank you very much. Because of this program, all the members are getting all the details related to the digitalization. Second, thanks to our Himanshu ji here from NASSCOM, as well as the team from startup who has given the details about your startup. So definitely it will help to our members. I would like to thank to our Group Chairman Basir ji for giving wonderful MOC, our other Group Chairman Vijay Bhai Mewala, and special thanks to Chetan Seth, who just went right now. He has given the full day for 2 days to get all knowledge about the industries who are doing the work and how that industry can grow for further digitalize particularly.
I would like to thank to Bharat Bhai Gandhi also, our past president, our senior mentor of the SGCCI, who has given time today and come especially for this today's program. And sir, thank you for motivate us to do this type of the program. And special thanks to all of you who came today from your busy schedule and get knowledge. I think you will get all the details, and hopefully you will be further digitalize your company as well. Thank you very much. And yeah, and one more thing, if you want anything related to digital or related to any trade and industry, you can contact to Chamber of Commerce. And I would also like to give one special invitation that we are going to do one startup program just day after tomorrow. That is on 20th January, Thursday at 6 p.m. Sorry, Friday at 6 p.m. at our Platinum Hall, Sarsana. That is also a wonderful program related to the, if you are going to do for startup company, and if you want any investment from an investor, so you can also join that program. Thank you very much to all.